So we are live now. I hope, ma'am, I am audible to Okay. you. Yes, yes, yes. Okay. So today our session is on mind and immunity, and we are having with us Dr. Bhavita Dua. I would like to introduce you, ma'am. She is a PhD in microbiology, having 6 year experience working in Jalma Leprosy Institute, having a 2 year experience of teaching. She has already published 7 articles and she is a guest faculty right now in Department of Biotechnology in School of Life Science, Dr. B.R. Ambedkar University, Agra. I hope, ma'am, we'll be telling like online queries and some offline queries which are available here. Am I audible Okay. and I am clear? Yes, yes. You are audible. Am I audible? Yes, you are also audible. So now we will Okay. start with आपकी the आवाज session, थोड़ी सी ma'am. कट रही है. Okay. ओके ओके. नाउ वी स्टार्ट विद सेशन और मैं लोगों को सबको ये बताना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को कि हमारा ये सेशन पहले वाले सेशन की ही तरह हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में होगा, इसलिए सबको ही अच्छा लगेगा इंटरेक्शन में. बेसिकली हमारा जो आज का सेशन है माइंड एंड इम्यूनिटी, ये हमें ये बताएगा हाउ थॉट्स आर रिलेटेड टू आवर माइंड, हाउ थॉट्स ऑल्टर आर इम्यूनिटी. जो हमारा माइंड है वो हमारी इम्यूनिटी को कैसे रिलेट करता है और कैसे ऑल्टरेशंस होते हैं. So I would like to hand over this mic to you, ma'am, and I would like you to introduce yourself. Then you should take your topic. Okay. First of all, I would like to thank you, Dr. Nakul, for providing me this opportunity. Thank you. So, as you have already introduced, but as you said, I've done my BSc and MSc microbiology from the Agra University. After that, I qualified CSIR NET, and then I joined National Jalma Institute as on a post of junior research fellow. There I worked around 6 years in immunology department under the supervision of Dr. Binu Joshi, retired deputy director of the institute. My Okay. PhD work was on immunity to leprosy. I was awarded with my PhD degree in February 2016. I took a short break, and just before around 2 years, I joined as a guest faculty in the Department of Biotechnology, University Campus, Khandari. Okay. So let's start today's topic, as the topic is mind and immunity. We are not going to discuss the physiology of the mind, but we are going to discuss here the how our thoughts or our mind regulate our immune system. ये पहले माना जाता था कि जो हमारी जो सोच होती है, एम आई ऑडिबल ना? Yes, clearly. एम आई ऑडिबल? हाँ. Yes. तो पहले ये माना जाता था कि हमारी जो सोच होती है वो हमारी हेल्थ पे बहुत इफेक्ट डालती है. हमारा जो मेंटल जो एक कंडीशन रहती है, हम हैप्पी हैं, हम स्ट्रेस्ड हैं, हम डिप्रेस्ड हैं, इन सब चीजों का बहुत फर्क पड़ता है हमारी हेल्थ पे. तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1960 एक स्टडी हुई जिससे डायरेक्ट कोरिलेशन बताया गया कि माइंड इज डायरेक्टली रिलेटेड विद आवर इम्यूनिटी. So the branch in which we study the relationship between our psychological state and our immune system is called psychoneuroimmunology, and this term was coined Psychoneuroimmunology. by Robert Adler. Psychoneuroimmunology. It's Okay. also called psychoneuroendocrinoimmunology or Okay. psychoendoneuroimmunology. Three names are given for this discipline actually. Okay. So this is the discipline which actually study the relationship between our mental state and our immune system. So how the mind is regulating our immune system. तो होता क्या है, जब भी हम कोई चीज देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, सुनते हैं या फिर हम सोचते हैं, तो हमारा जो माइंड है उसके लिए रिस्पॉन्स करता है. बट इफ द सिचुएशन इज अनफेवरेबल और इफ इट इज थ्रेटनिंग और कुछ भी हमें टेंशन देने वाली सिचुएशन होती है, तो हमारा दिमाग में एक सिचुएशन, एक कंडीशन स्टार्ट होने लगती है विच वी कॉल्ड स्ट्रेस. ठीक है. तो डायरेक्टली जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली फिर रिलेट करता है हमारी इम्यूनिटी से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट स्ट्रेस. तो व्हाट इज स्ट्रेस? So actually stress can be defined as a reaction of our body to a stimuli which disturb our physical and mental equilibrium.
हमारी बॉडी की एक रिएक्शन है जो हमारे फिजिकल या मेंटल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देती है किसी भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट, और दीज स्टिमुलाई कैन बी एक्सटर्नल ऑन कैन बी इंटरनल। तो स्ट्रेस एक्चुअली क्या है, एक साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स ही है जो कि हमारी बॉडी किसी भी एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलाई के लिए देती है। तो अब स्ट्रेस को इंड्यूस करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड स्ट्रेसर्स। ठीक है, so what are the stressors? These stressors are the chemical, biological, environmental condition or the external stimuli, or they are the events that can cause an organism in a condition which is called stress. ये कोई भी फैक्टर है, कोई environmental है, biological है, फिजिकल है, कोई भी इंटरनल एक्सटर्नल कोई भी फैक्टर हो सकता है जो हमारी बॉडी में स्ट्रेस इंड्यूस कर देता है। तो सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ स्ट्रेस जैसे, हाँ जी, एक एग्जांपल दें जो हाँ वही देने लगी थी जी। हाँ, आई एम गिविंग। तो सम ऑफ द एग्जांपल आर जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर है, ठीक है, एनी नेचुरल डिजास्टर, हमारी लाइफ में कोई चेंजेस हो जाते हैं, कोई हैजल हो जाती है, या हम किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसमें हम खुश नहीं हैं, या फिर हम बहुत ही पॉवर्टी में, आप बहुत ही गरीबी में आप रह रहे हो, तो ये सारी चीजें हैं, ये हमें स्ट्रेस दे सकती हैं। तो अब on the basis of the time the stressors remain, the stressors are divided in two categories. First one is acute stressor and other is chronic stressor. तो जो acute stressor होते हैं ये time limited stressor होते हैं, मतलब ये कुछ समय के लिए ही रहते हैं। For example, public speaking, या फिर कोई स्टूडेंट है जो अपनी क्लास में कोई सेमिनार प्रेजेंट करने जा रहा है, या फिर कोई मेंटल अरिथमेटिक हमें सॉल्व करना है, तो वो द स्ट्रेसर ऑनसेट विद इन मिनट्स, थोड़े से टाइम में ये जो स्ट्रेसर है इंड्यूस हो जाता है, हमारे स्ट्रेस को इंड्यूस कर देते हैं। अनदर टाइप ऑफ स्ट्रेसर्स आर द क्रोनिक स्ट्रेसर। क्रोनिक स्ट्रेसर जो होते हैं ये लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रेसर होते हैं, मतलब ये ज्यादा समय के लिए रहते हैं, विच कैन बी फ्रॉम डेज, मंथ और ईयर्स। ठीक है, काफी लंबे समय तक ये रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कोई फिजिकल इलनेस हो, कोई ट्रॉमेटिक इंजरी हो जिसकी वजह से कोई स्ट्रॉन्ग फिजिकल इलनेस हमें हो गई है जो ठीक नहीं हो रही है, या फिर कोई वी आर गिविंग केयर गिविंग फॉर अ फैमिली मेंबर हु इज सफरिंग फ्रॉम अल्जाइमर्स डिसीज, तो इट्स ऑल्सो अ स्ट्रेसिंग कंडीशन कि आपको एक ऐसे इंसान का जो लव्ड वन है आपका, और आप उसका पूरा समय इतना ध्यान रखना है जो कि अल्जाइमर से सफर कर रहा है, तो दिस कंडीशन इज ऑल्सो it can also be stressful. So these type of stressors which are long lasting, these are called chronic stressors. Chronic stress. Okay. So now what is the link between this stress response and immunity? तो ये जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है ये इम्यूनिटी से कैसे लिंक करते हैं? स्ट्रेस रिस्पॉन्स को इम्यूनिटी से लिंक करने के लिए कई थ्योरीज दी गई हैं, एक्चुअली 3 थ्योरीज। तो वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट दिस. About these theories. First one is the theory first, which is given in 1975. Or according to this theory, stress can globally suppress our immune system. So, or the first model was given in this theory. Or the scientist Sally, he described 3 stages of a general adaptation syndrome, जहाँ पर हमारा जो immune response है धीरे धीरे इन stress के लिए adapt कर लेता है. So there are 3 stages. First one is alarm stage. तो alarm stage जो होती है ये पहली स्टेज होती है जहाँ हमारी where our body prepared for a fight or flight response in response to a threat. मतलब कोई हमने एकदम से कुछ threat हमने देख लिया और यहाँ हमारी बॉडी जो है वो एकदम से fight to flight response के लिए तैयार होती है. Now come to what is fight or flight response. तो fight और like acute response of the body. हाँ acute, it's a acute stress response. या जो fight or flight response होता है ये एक acute stress response होता है जहाँ हमारी बॉडी किसी भी थ्रेट को देखकर एकदम से वो प्रिपेयर होने लगती है और देन इट बिकम रेडी ईदर टू स्टे और डील विद द थ्रेट और टू रन अवे फॉर सेफ्टी. तो होता क्या है, ये जो बॉडी में हमारे कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो अपनी रिसोर्सेज को मोबिलाइज करती है, और अगर ऐसे में कोई खतरा होता है, हमें जरूरत पड़ती है, तो हम उन रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं अपने फायदे के लिए. तो ये एक्यूट स्टेज रिस्पॉन्स होता है. जो हमारा फर्स्ट स्टेज है अलार्म स्टेज,
नाउ कम टू द सेकंड स्टेज, एंड दिस स्टेज एक्चुअली अगर स्ट्रेस इसके बाद भी परसिस्ट करता है तब हम आ जाते हैं सेकंड स्टेज में। तो ये जो सेकंड स्टेज होती है, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इस स्टेज में क्या होता है, जो हमारी बॉडी है वो चैनलाइज करना शुरू कर देती है ऑल द रिसोर्सेज को, जो कि जैसे हार्मोन है, ब्लड शुगर है, हार्मोन सीक्रेट होने लगते हैं, ब्लड शुगर का लेवल बढ़ने लगता है, जिससे कि ये एनर्जी अब यूज हो सकती है फाइट और फ्लाइट के लिए। ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड स्टेज विच इज कॉल्ड एग्जॉशन। तो एग्जॉशन क्या होता है, जब ये स्ट्रेसर बहुत ज्यादा समय तक रहते हैं, तो जब when the stressor remains for the long time, so there is stage come when body run out of its resources, रिजर्व एनर्जी बॉडी की खत्म होने लगती है, इम्यून सिस्टम डाउन होने लगता है, और उसकी वजह से क्या होता है, वन मे फॉल इल और इवन मे डाई। तो ये उसका रिस्पॉन्स हो सकता है अगर स्ट्रेसर बहुत लंबे समय तक रहता है। दिस वॉज द फर्स्ट थ्योरी। Another theory, which is second theory, it was given by Robert Adler, जो हम साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी की बात कर रहे थे, उसमें वो आता है। तो ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये जो अपना जो वर्क है, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली उन्होंने प्रूव किया था कि जो स्ट्रेस होता है इट सप्रेस अवर इम्यून रिस्पॉन्स। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट रैट पर किए थे, जिसमें उन्होंने फिजियोकेमिकल स्ट्रेस दिया था रैट्स को थ्रू सैक्रिन, और फिर कुछ समय बाद उन्होंने उसी स्ट्रेस को जब रिपीट किया, तो ही फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द रैट पॉपुलेशन जो थी, उनके जो एक्सपेरिमेंट की थी, वो डाई हो गए थे। तो ओवरऑल ही सजेस्टेड कि जो स्ट्रेस होता है वो इम्यून सिस्टम को इतना ज्यादा वीक कर देता है, जिसकी वजह से फिर इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन से नहीं लड़ पाता, और जिसकी वजह से या तो बहुत ज्यादा इलनेस या डिसीजेस वगैरह डेवलप होती है। एंड दिस वाज द सेकंड थ्योरी। And now come to the third theory. This theory is actually based that stress and immune systems are activated by HPA axis. HPA axis means hypothalamic pituitary adrenal axis and cortisol. तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी और इसमें कुछ हार्मोन है, इनको कलेक्टिवली इसमें रोल दिखाया गया है कि जिसकी वजह से ये इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस अवर हाइपोथैलेमस जो है इट एक्टिवेट्स एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और द पिट्यूटरी ग्लैंड देन सीक्रेट ACTH, एड्रिनल कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, व्हिच एक्टिवेट एड्रिनल कॉर्टेक्स व्हिच रिलीजेस कोर्टिसोल, एंड दिस कोर्टिसोल हार्मोन इज एक्चुअली suppressive effect on the immune system. Okay, am I clear? Yeah, you're very clear. So अब now we will study how this stress is means cortisol is regulating our immune system. So many of the researches has been done with this cortisol, and the studies found that there is a negative relationship between the cortisol level and the immune system. It means अगर cortisol level बढ़ रहा है तो immune system की efficiency कम हो रही है। Okay, तो its secretion जैसे ही स्ट्रेस कंडीशन होती है, कोर्टिसोल का जो सिक्रेशन है वो बढ़ना शुरू हो जाता है बाय सिंपैथेटिक ब्रांच ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जब शॉर्ट टर्म स्ट्रेसर्स होते हैं तो कोर्टिसोल रेज होता है। ओके, पर कई बार जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेसर होते हैं उसमें कई बार कोर्टिसोल का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, और कोर्टिसोल का जो इफेक्ट होता है इम्यून सिस्टम पर, वो इफेक्ट उसका ये होता है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी मीन्स इट विल प्रिवेंट इन्फ्लेमेशन। ओके, तो अगर इन्फ्लेमेशन एंटी इन्फ्लेमेटरी इन्फ्लेमेशन को प्रिवेंट कर रहा है, कोर्टिसोल है, इन्फ्लेमेशन एक्सेसिव नहीं होगा। पर अगर कोर्टिसोल धीरे धीरे कम हो गया तो इन्फ्लेमेशन ओवर भी हो सकता है, विच में लीड टू द क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेज। ओके, सो what happen when the cortisol level rises? जब कोर्टिसोल का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब क्या होता है? तो जब कोर्टिसोल का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एक्चुअली वेरी हाई डोज ऑफ द कोर्टिसोल की वजह से क्या होता है, जो इम्यून सेल्स होती हैं वो डिसेंसिटाइज हो जाती है। जो कोर्टिसोल पहले उन पर काम कर रहा था अब वो काम करना बंद कर देता है, क्योंकि द सेल्स स्टार्ट एक्सप्रेसिंग ओनली फ्यूएबल रिसेप्टर फॉर द कोर्टिसोल, और कोर्टिसोल सेल पर काम नहीं कर रहा है, इसलिए उनको इन्फ्लेमेशन मतलब उनके इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को वो रोकेगा नहीं, और रोकेगा नहीं तो देयर विल बी एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन विच कैन बी विच कैन डेवलप इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस। और हाई लेवल ऑफ द कोर्टिसोल ऑल्सो
related to the inversely related to the number of lymphocyte in blood. ब्लड में lymphocyte जो सेल होती हैं कम हो जाती हैं, बहुत सारी इम्यून सेल्स की ये किलिंग करता है, इसकी वजह से उनका प्रोडक्शन लो हो जाता है, उनकी जो एफिशिएंसी है काम करने की वो कम हो जाती है. दीज आर ऑल द ड्रॉबैक्स ऑफ हाई कोर्टिसोल लेवल. और इन द प्रेजेंस व्हाट हैपन इफ द कोर्टिसोल लेवल इज टू लो. अगर कोर्टिसोल का लेवल बहुत कम होगा तो क्या है, इसका एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन बहुत हो सकता है. तो ये मैंने बताया कि ये कोर्टिसोल है जो ऐसे काम करता है और इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट करता है. तो हाउ दीज हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर्स आर एक्चुअली regulating the immune system. First of all, we will talk about little about immune system as I have already described briefly in my previous talk. So, what is immune system? Immune system are defensive system of our body which protect us from the diseases and from cancer. Cancer is what? कैंसर मीन्स एक कोई अपनी ही बॉडी की सेल है जो ऑल्टर हो गई है, उसकी ग्रोथ की मैकेनिज्म लूज हो गई है, ग्रोथ कंट्रोल की मैकेनिज्म, और वो अनकंट्रोल वे में डिवाइड करती चली जा रही है, विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर. दिस इज कैंसर ना. तो कैंसर से बचाने का भी काम और इन्फेक्शन से बचाने का काम, दोनों काम जो है वो करने वाला है इम्यून सिस्टम. तो इम्यून सिस्टम जो है, एक बैलेंस्ड इम्यून सिस्टम इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर आवर गुड हेल्थ. ओके. इफ इम्यून सिस्टम अंडर रिएक्ट, अगर वो बहुत कम काम कर रहा है, ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो इट्स ऑल्सो हार्मफुल. कैसे? इफ इम्यून सिस्टम इज अंडर रिएक्टिंग देन वी कैन डेवलप सम इन्फेक्शन. ओके, क्योंकि हम पैथोजन से फाइट नहीं कर पा रहे तो हमें इन्फेक्शियस डिसीज हो सकती हैं. दिस इज द एक्सटर्नल थ्रेट. ओके. और इफ इम्यून सिस्टम is underreacting, then we are also an internal threat that we can develop cancer, क्योंकि कैंसर से फाइट करने का काम भी हमारा इम्यून सिस्टम ही कर रहा है. इफ इम्यून सिस्टम इज ओवर रिएक्टिंग, दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, क्योंकि अगर इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करेगा तो इट कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, which is people also known as allergy, but actually type 1 hypersensitivity is especially called allergy. तो हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है क्योंकि इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहा है. तो दिस इज अ एक्सटर्नल थ्रेट. और इफ इम्यून सिस्टम इज ओवर रिएक्टिंग, तो देयर इज ऑल्सो इंटरनल थ्रेट विच इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑटो इम्यूनिटी. मीन्स अवर इम्यून सिस्टम विल रिएक्ट आवर बॉडीज अगेंस्ट आवर बॉडीज एंटीजन और बॉडीज मॉलिक्यूल और सेल वॉट एवर, उनके अगेंस्ट ही हमारा इम्यून सिस्टम रिएक्ट करना शुरू करेगा और हमें कोई भी ऑटो इम्यून डिसीज उसमें हो सकती है. तो बैलेंस इम्यून सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है. तो अब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं. तो वी ऑल नो दैट इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट विद द डिसीजेस एंड कैंसर. शॉर्टली मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ दे देती हूँ कि इम्यूनिटी इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप, विच फर्स्ट वन इज इनेट एंड सेकंड वन इज अडेप्टिव. इनेट इज अ नेचुरल इम्यूनिटी और अडेप्टिव जो इनेट जो होती है नेचुरल इम्यूनिटी होती है, कोई भी चाइल्ड जो है बाय बर्थ इसको एक्वायर कर लेता है. और जो अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी बिकॉज वी एक्वायर इट्स ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम व्हेन वी आर एक्सपोज टू डिफरेंट पैथोजन. तो हम उसको एक्सपोज करते हैं, एक्वायर करते हैं. तो देयर आर 4 फीचर्स विच डिफरेंशिएट अडेप्टिव इम्यूनिटी टू इनेट इम्यूनिटी. फर्स्ट वन इज डाइवर्सिटी. जो अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है वो बहुत डाइवर्स होती है, मतलब इट विल प्रोड्यूस अ डाइवर्स रेंज ऑफ मॉलिक्यूल which can be receptors or which can be antibodies which recognize different specific antigen. Adaptive immunity is specific. Adaptive immunity has memory, and adaptive immunity can discriminate between self and non-self. So these are the 4 features which discriminate adaptive immunity from the innate immunity. तो इस तरीके से हमारे पास both of the immune system have are essential for आर गुड हेल्थ. क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि अगर इनेट इम्यून सिस्टम काम कर रहा है तो चलेगा या अडेप्टिव काम कर रहा है तो चलेगा. दोनों सिस्टम एक मिलकर काम करते हैं. जब भी कोई एक्सपोजर होता है तो सबसे पहले इनेट इम्यून सिस्टम एनकाउंटर होता है उस एक्सपोजर से, और वो हमें तब तक बचाता है जब तक अडेप्टिव इम्यूनिटी काम करना शुरू नहीं करती. बिकॉज अडेप्टिव इम्यूनिटी टेक सम टाइम. It needs the activation of specific cell and then these cells start functioning. तो थोड़ा सा समय लगता है, तब तक हमें innate immunity बचा कर रखती है. But both of the immune system work in coordination and they both are necessary for our good health. So first of all,
now we are going to study how these stresses are affecting our both of these type of immunity. Okay, adaptive immunity and innate immunity. So first of all, we will study the effect of stress on the innate immunity. So innate immunity की अगर हम बात करें तो some cells are there which are playing role in the innate immunity, such as the natural killer cells, phagocytic cells, macrophages, dendritic cells, or eosinophils, neutrophils, basophils, number of cells, mainly granulocytes, phagocytic cells, and the natural killer cells are there, which are playing role in the innate immune system. So, what are phagocytic cells? Phagocytic cells actually are the cells which have property to engulf the antigen. What they do, they engulf the pathogen and they digest it. और उसको खत्म कर देते हैं बिल्कुल भी उसको डाइजेस्ट करके. ये बहुत शॉर्ट लिव्ड सेल्स होती हैं और इसके अलावा इनका एक काम और होता है कि ये कुछ साइटोकाइन बनाती हैं जो अदर सेल्स को एक्टिवेशन में हेल्प करते हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन फैगोसिटिक सेल्स का होता है, सच एज मैक्रोफेजेस. दे एक्टिवेट सेल्स ऑफ द एडेप्टिव इम्यून सिस्टम व्हिच आर टी सेल्स. Okay. So these are the phagocytic cells. Now we will talk about the natural killer cells. These cells are named natural killer cells because they are having killing activity against the target cell. And these target cells are virus infected cells or the cancer cells. Mainly natural killer cells जो होती हैं वो कैंसर सेल के लिए बहुत अच्छी इम्यूनिटी देती हैं. देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है कि अगर नेचुरल किलर सेल डेफिशिएंट होते हैं तो क्या होता है कि कैंसर डेवलप होने का जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा हो जाता है. तो अब बोथ टाइप ऑफ दीज स्ट्रेस, हम कह सकते हैं एक्यूट स्ट्रेस और क्रोनिक स्ट्रेस, ऑल दीज आर स्ट्रेस आर हैविंग इफेक्ट ऑन द इनेट इम्यून सिस्टम. इनेट इम्यून सिस्टम पे जो इनके इफेक्ट होते हैं वो एक्चुअली जो एक्यूट स्ट्रेस होता है इट लिटिल मतलब थोड़ा सा इनेट इम्यूनिटी के लिए फायदा करता है, क्योंकि थोड़े समय के लिए क्या करता है बॉडी को इन्फ्लेमेशन के लिए रेडी करता है. तो इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ दीज फैगोसिटिक सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स इन द ब्लड. इट इंक्रीजेस इट्स देयर एक्टिविटी. बट द क्रोनिक स्ट्रेस actually suppresses their function. All the cells of innate immune system की जो भी सेल्स होती हैं उनके फंक्शन को सप्रेस करता है क्रोनिक स्ट्रेस. एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव किया गया है कि अगर कोई स्ट्रेस पर्सन है उसकी नेचुरल किलर सेल्स जो होती हैं दे आर लेस एफिशिएंट देन अ पर्सन हु इज हैविंग नो स्ट्रेस. तो जो इन विट्रो होता क्या है कि जो नेचुरल किलर सेल होती है इन 30 मिनट दे किल द कैंसर सेल, ओनली इन 30 मिनट. पर दे हैव बीन फाउंड लेस एफिशिएंट इफ दे आर टेकन फ्रॉम द स्ट्रेस्ड पर्सन. Now come to the effects of the innate stress on the adaptive immune response. तो अगर हम adaptive immunity की हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे सबसे पहले इसमें जो सेल्स होती हैं मेनली B lymphocyte and T lymphocyte. B lymphocyte are the cells which are responsible for the production of antibodies. So what antibody do? They just bind to the antigen or pathogen and facilitate उसके जो क्लियरेंस है वो उसके फैसिलिटेट करती हैं. वो खुद कुछ नहीं कर सकती, दे जस्ट मार्क दिस एंटीजन और द पैथोजन, उसको मार्क कर देती हैं. और देयर आर सम एंटीबॉडी मीडिएटेड इफेक्टर फंक्शन जिनके थ्रू पे जो इम्यून सिस्टम है वो उस पैथोजन को क्लियर करता है. अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम आर द टी लिम्फोसाइट. तो टी लिम्फोसाइट देयर आर टू टाइप मेनली, टी हेल्पर एंड टी साइटोटॉक्सिक. ऑन द बेसिस ऑफ द रिसेप्टर दे आर एक्सप्रेसिंग, उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है. तो टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को नाम टी साइटोटॉक्सिक इसलिए दिया गया है कि अदर सेल्स के लिए टॉक्सिक इफेक्ट होता है इनका. तो इनके जिन सेल्स पर टॉक्सिक इफेक्ट शो करती हैं उनको हम टारगेट सेल बोलते हैं. और ये टारगेट सेल कोई भी इन्फेक्टेड सेल हो सकती है या फिर वो कैंसर सेल हो सकती है. नाउ कम टू द टी हेल्पर सेल्स. टी हेल्पर सेल्स आर गिवन द नेम टी हेल्पर बिकॉज दे हेल्प अदर सेल्स. और मेनली टू टाइप, वैसे तो बहुत तरीके के हैं जब हम पढ़ते हैं TH1, TH2, TH10, TH17 बहुत सारी हैं. मेनली हमें बता रही हूँ दो तरह की, TH1 एंड TH2. तो TH1 जो टी हेल्पर सेल्स का काम करने का तरीका ये होता है कि ये बस कुछ साइटोकाइंस बनाते हैं और ये जो साइटोकाइंस हैं ये अदर सेल्स को हेल्प करते हैं. तो इसलिए इन्हें टी हेल्पर नाम दिया है. टी हेल्पर इस तरह के साइटोकाइन बनाएगा जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स विच इज मीडिएटेड बाय टी साइटोटॉक्सिक सेल उसको सपोर्ट करेगा. और TH2 इस तरह की साइटोकाइन बनाएंगी विच सपोर्ट एंटीबॉडी मीडिएटेड या ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स को सपोर्ट करेंगी. एक अनदर पॉपुलेशन ऑफ टी हेल्पर सेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच इज कॉल्ड टी रेगुलेटरी सेल्स.
Previously, it was known as the T suppressor cell because they suppress the immune response. पर बाद में जैसे जैसे इनका रिसर्च एडवांस हुआ तब देखा गया कि जो इनका सप्रेसिव रिस्पॉन्स है एक्चुअली दे रेगुलेट रिस्पॉन्स. कई कंडीशन में दे आर बेनिफिशियल, क्योंकि जहाँ पर इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हो रहा है डिसीज में और उसकी वजह से टिश्यू डैमेज हो रहा है और टी रेगुलेटरी सेल अगर उस इन्फ्लेमेशन को सप्रेस कर रही है तो दे आर हेल्पिंग. और अगर ये इन्फ्लेमेशन इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस कर रही है और जिसकी वजह से डिसीज डेवलप हो रही है तो दे आर हार्मफुल. तो इसलिए इनको नाम दे दिया गया टी रेगुलेटरी सेल्स. तो दीज आर द सेल्स. अब ये है हमारे अडेप्टिव इम्यूनिटी जिसमें टी सेल है, बी सेल है, एंटीबॉडी बनती है, साइटोकाइंस बनते हैं और जो टी साइटोटॉक्सिक सेल हैं वो डायरेक्टली टारगेट सेल को किल करते हैं. तो स्ट्रेस हैज आल्सो इफेक्ट ऑन द अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स. तो इनेट इम्यून रिस्पॉन्स के साथ देखा गया है कि जो एक्यूट स्ट्रेस होता है कभी थोड़ा थोड़ा सा ये हेल्पफुल होता है, पर अडेप्टिव के साथ ज्यादा ऐसा इस तरह का कुछ भी नहीं देखा गया है. मेनली जो होता है स्ट्रेस एक्यूट, जो पहले हम एक्यूट स्ट्रेस के साथ बात करेंगे और फिर हम क्रोनिक स्ट्रेस के साथ. तो जो एक्यूट स्ट्रेस होता है इट डिक्रीज स्पेसिफिक इम्यूनिटी, इट डिक्रीज TH1 टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स but little bit increase TH2 type of immune response. But if we talk about the chronic stress lymphocyte, it reduces the production of lymphocyte, it reduces the function of the lymphocyte, it reduces TH1 and TH2 type of reaction. Means stress is having negative effect on our adaptive immune response. And now I will talk little about cytokines. These are very important component of our immune system. Actually, immune system comprises of number of organ, number of cells, and number of molecules. So how these cells are working in cooperation. They are just collaborating through these cytokines. So what are cytokines? Cytokines are very small molecular weight protein which are produced by the immune cells. और ये सिग्नल का काम करते हैं. हमें पता है कोई भी सेल कैसे काम करती है, वो सिर्फ सिग्नल के थ्रू काम करती है. जब वो से कोई सिग्नल मिलता है तो उस सिग्नल से जैसा उस सिग्नल के अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स करती है. तो साइटोकाइंस आर कैटेगराइज्ड इन 4 कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन. फर्स्ट वन इज इंटरल्यूकिन, मतलब एक कोई सेल इन्हें बना रही है, दूसरी सेल्स पे काम कर रहे हैं, सेम सेल पे भी काम करते हैं. अनदर इज इंटरफेरॉन. इंटरफेरॉन आर प्रोड्यूस्ड बाय इन virus infected cell which inhibit the replication of virus in adjacent cell, except interferon gamma which is produced by activated macrophages. Now other category is tumor necrosis factor. These are named tumor necrosis factor because they are responsible for killing the tumor cell. तो ट्यूमर को सेल को किल करने का काम कर रहे हैं, इसलिए इनको नाम दे दिया गया है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर. एंड लास्ट एंड फोर्थ कैटेगरी इज chemokines. Chemokines means they are working as a chemo attractant. तो इनका क्या काम है, कीमोटैक्सिस के थ्रू सेल इनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं. तो ये बहुत जरूरी है कि बॉडी में इन्फेक्शन कहाँ से पहुंच रहा है, कहाँ पर जरूरत है कि इम्यून सेल्स कलेक्ट होकर उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करें. तो कीमोटैक्सिस बहुत जरूरी है. पूरी बॉडी में सेल सर्कुलेट कर रही हैं और ये उस जगह कैसे पहुंचेंगी, तो कोई सिग्नल होगा ना जो उनके ऊपर काम करेगा. तो दीज सिग्नल्स आर कीमोकाइन. तो साइटोकाइन पर भी इन जो स्ट्रेस है इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है साइटोकाइन पे भी. अगर कोई परसिस्टेंट या क्रोनिक, देखो एक्यूट स्ट्रेस में क्या होता है, एक्यूट स्ट्रेस में प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन बनने शुरू हो जाते हैं क्योंकि बॉडी प्रिपेयर होती है इन्फ्लेमेशन के लिए और इट्स एक्चुअली बेनिफिशियल. क्योंकि सपोज हम अगर एनिमल का एग्जांपल लें कि एक बिल्ली ने कुत्ते को देख लिया तो क्या होगा, वो रेडी हो जाएगी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए, है ना. क्योंकि अब ये वो डिसाइड करेगी कि या तो वो उससे लड़ेगी या फिर वो वहां से भाग जाएगी. ओके, तो उसकी बॉडी ऑलरेडी प्रिपेयर हो रही है कि अगर जरूरत पड़े तो इन्फ्लेमेशन हो, और सपोज उसको कोई इंजरी आती है तो इन्फ्लेमेशन के थ्रू उसको कंट्रोल कर सकते हैं. तो इट्स बेनिफिशियल. पर अगर ये जो स्ट्रेस है, कोई भी स्ट्रेस है, अगर वो परसिस्टेंट होता है, इट मीन्स क्रोनिक होता है, तो वो साइटोकाइन पर उसका जो इफेक्ट होता है वो इन्फ्लेमेटरी, जो इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन, इंक्रीज ये जो नॉकआउट जो हमारा कोर्टिसोल जो है, जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस को जो इन्फ्लेमेशन को रोकता है, इट मीन्स इट सप्रेसेस द प्रोडक्शन ऑफ प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन. तो क्या होता है, उसका काम होना कोर्टिसोल का बंद हो जाता है.
जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो इन्फ्लेमेशन जब कंट्रोल नहीं होगा तो इट विल डैमेज बॉडी, क्योंकि जब ओवर या एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन होता है, वो जिस भी एरिया, जिस भी टिश्यू में हो रहा है, तो वो वहां उस टिश्यू को डैमेज करता है। सेम ऐसा ही इफेक्ट मतलब ओवरऑल इम्यून सिस्टम पे हमने यहाँ बात करी है, तो अडेप्टिव पे, साइटोकाइन से, देयर इज नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द स्ट्रेस एंड इम्यून रिस्पॉन्स। तो अब हम बात करेंगे कि हमने यहाँ पढ़ा कि साइटोकाइन जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स, स्ट्रेस के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स कर रहा है। अब वो रिस्पॉन्स कर कैसे रहा है? इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, क्योंकि ये सब सिग्नलिंग के बेसिस पे हो रहा है। इट हैज बीन फाउंड दैट इम्यून सेल्स आर हैविंग रिसेप्टर्स फॉर सम न्यूरोट्रांसमीटर सच एज epinephrine, norepinephrine. These are the hormone which are produced during the stress. ठीक है, और इट हैज बीन प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली कि जब ये रिसेप्टर्स अपने सिग्नल पर बाइंड होते हैं, व्हेन दिस रिसेप्टर बाइंड टू व्हेन these signals bind to their receptor on the immune cells, then a signal transduction cascade starts within the cell, which finally leads to the change in gene expression. तो क्या होता है, ये जो स्ट्रेसर्स या जो हम सिग्नल की बात करेंगे, जो न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज हुए, ये इम्यून सेल्स पर जाकर के इफेक्ट करते हैं, और इट हैज बीन फाउंड दैट द इम्यून सेल्स चेंज देयर रिस्पॉन्स इन रिस्पॉन्स टू सिग्नल थ्रू दीज न्यूरोट्रांसमीटर। मतलब वो जो काम कर रही थी या जो वो काम करती हैं, वो उनका काम करने का तरीका या रिस्पॉन्स वो चेंज हो जाता है जब उनको सिग्नल इन न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये जो हार्मोन है जिनके थ्रू जो इनको सिग्नल जो मिलते हैं, तब इनका रिस्पॉन्स चेंज हो जाता है। एक्यूट रिस्पॉन्स में क्या होता है, एक्यूट रिस्पॉन्स में तो जैसे कोर्टिसोल बना तो क्या होगा, अपना काम करना शुरू। एक्यूट रिस्पॉन्स में एक्चुअली क्या होता है, जो लिम्फोसाइट है, एक्यूट रिस्पॉन्स एक्चुअली ट्रैफिक लिम्फोसाइट को वो ट्रैफिक करते हैं ब्लड में, और ब्लड में इम्यून सेल्स का नंबर बढ़ जाता है। पर अगर यही स्ट्रेस अगर क्रोनिक हो जाता है तो ये इसका इफेक्ट एकदम ऑपोजिट हो जाता है। क्या होता है, लिम्फोसाइट और अदर इम्यून सेल्स का नंबर कम हो जाता है, इनका प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है, इनका फंक्शन एफिशिएंसी इनकी कम हो जाती है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी बाय द बी सेल वो भी डिक्रीज हो जाता है। तो ओवरऑल जो क्रोनिक स्ट्रेस है, धीरे 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 वो इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से फिर बॉडी जो हो जाती है वो मीन्स सेंसिटिव हो जाती है बहुत ज्यादा। कोई इन्फेक्शन होगा तो डिसीज बहुत आराम से हो सकती है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम रेडी नहीं है उन डिसीजेस के साथ फाइट करने के लिए। तो बहुत सारी एक्चुअली जो स्टडीज हुई हैं अलग अलग डिसीजेस के साथ, जहाँ पर देखा गया है रिलेशन बिटवीन द स्ट्रेस एंड इम्यूनिटी। एक HIV पेशेंट के साथ स्टडी हुई, उसमें देखा गया कि जो HIV पेशेंट अगर कोई एवरेज स्ट्रेस से ज्यादा स्ट्रेस अगर उसको है, तो उसके अंदर जो वायरल्स का रिप्लिकेशन होता है वो कई फोल्ड इंक्रीज हो जाता है, तो वो बहुत जल्दी HIV पॉजिटिव से एड्स में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब देयर इज अ इंक्यूबेशन पीरियड ना, कि आपको HIV का इन्फेक्शन हुआ, देन यू डेवलप एड्स, तो इट टेक्स ईयर्स। धीरे 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 इम्यूनिटी सप्रेस होती है और फिर वो HIV प्रोग्रेस होता है, इट कन्वर्टेड टू एड्स में वो कन्वर्ट होता है। एक स्टडी मेडिकल स्टूडेंट में की गई, जहाँ पर ये देखा गया कि जो एग्जामिनेशन पीरियड होता है 3 दिन की, उसमें उनके सैंपल लिए गए और उसमें देखा गया ड्यूरिंग द 3 days ऑफ एग्जामिनेशन पीरियड जो मेडिकल स्टूडेंट बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे, और उस स्ट्रेस की वजह से क्या हुआ, जो उनकी नेचुरल किलर सेल पे जब उनके काम किया गया तो देयर नेचुरल किलर सेल्स वर फाउंड लेस इफेक्टिव, दे वर शोइंग लेस साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी, उनकी किलिंग एक्टिविटी जो थी वो बहुत कम हो गई थी। इट हैज ऑल्सो बीन स्टडीड कि ओनली कंप्लीट वन नाइट ऑफ स्लीप डेप्रिवेशन, मतलब एक अगर पूरी रात नहीं सोया जाए तो द नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स and their efficiency decreases, number of neutrophils in the blood and their efficiencies or for their function वो भी कम हो जाती है। तो बहुत सारी डिसीजेज में इसके लिए काम किया गया है। इट्स एक्चुअली अ ब्रॉड एरिया और बहुत ग्रोइंग फील्ड है ये, जहाँ पर बहुत सारा काम किया जा रहा है, और ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से जो स्ट्रेस है, जो हमारी एक साइकोलॉजिकल स्टेट है, वो किस तरीके से हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करती है। और फाइनली अगर इम्यून सिस्टम इफेक्ट होगा तो इट विल ऑल्टर आवर हेल्थ, हमारी हेल्थ पर इसका बहुत बुरा, अगर इम्यून सिस्टम नेगेटिव हो रहा है, सप्रेस होता चला जा रहा है, तो हमारी हेल्थ पर इसका एक बुरा ही असर पड़ेगा।
अगर स्ट्रेस की वजह से इन्फ्लेमेशन ज्यादा होगा तो वी आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेज. ओके, और वी आर ऑल्सो एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शन. Okay. So in brief, we can say कि there is a negative relation between the stress और immunity. इसके में एक negative relation होता है सीधा सीधा, जो प्रूव हो गया है. कई अभी भी बहुत काम इस पर हो रहा है. How these hormones are affecting cells, ये जो है ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है. पूरे सिग्नल ट्रांजैक्शन वाला इसमें काम होता है कि कौन सा हार्मोन किस तरीके के सिग्नल का काम करता है और सेल में क्या क्या चेंज लाता है. तो ये एक अपना अलग फील्ड है, बट दिस फील्ड इज वेरी ब्रॉड. और ये एक बहुत फ्यूचर इसका, इस फील्ड का मैं कहूंगी एक ये है कि इस फील्ड में अगर काम बहुत ज्यादा होता है, हो ही रहा है एक्चुअली, तो इट विल बी हेल्पफुल ये पता लगाने में कि अगर कोई स्ट्रेस है तो हम पता लगा सकते हैं कि who one is actually at risk of developing a chronic inflammatory diseases or infectious diseases and why. Okay. ऐसा जी. क्यों हो रहा है. एक चीज बहुत अच्छी कनेक्टेड है की गई है एक स्टडी में, जहाँ पर अर्ली लाइफ स्ट्रेसर्स का इफेक्ट देखा गया है. अर्ली लाइफ स्ट्रेसर्स यानी आपको इंडिविजुअल जो है उनको स्ट्रेस मिला है उनके बचपन में, चाइल्डहुड में ही. तो Okay. चाइल्डहुड में जो बच्चे जिनके साथ कुछ अब्यूज होता है या फिर बहुत पुअर फैमिली के जो होते हैं, तो उनका जो इस तरीके का जो स्ट्रेस उनके बचपन में रहा था वो ओवरऑल उनके इम्यून सिस्टम को इस तरीके से अडेप्ट कर देता है कि उनका इम्यून सिस्टम फिर सप्रेस होने लगता है. तो देयर इज ऑल्सो स्टडी नीडेड कि आप इस तरह के यंग अडल्ट की आप उसकी स्टडी करो जो चाइल्डहुड में काफी स्ट्रेस में रहे हो. तो इट विल डायरेक्टली रिलेट. बहुत सारा इस पर काम हो सकता है. अभी तो हमने तो शायद कुछ ही बहुत कम ही यहाँ डिस्कस किया है. तो आई थिंक आई शुड स्टॉप नाउ. मैं बोल चुकी काफी कुछ. मुझे आई एम नॉट हियरिंग यू नकुल. हाँ, ओके. Yes, yes, now. Okay. So we are having online queries. Which theory is more prevalent now? You told us 3 theories, na? Yeah. Yeah. So which theory is more prevalent now? एक्चुअली देखिए जनरल एडेप्टेशन, हाँ एक्चुअली दिस इज जनरल एडेप्टेशन जो सिंड्रोम होता है ये भी एक मान्य है कि जी. 3 स्टेजेस हैं. पहली अलार्म स्टेजेस है, फिर रेजिस्टेंस है और फिर उसके बाद एक एट्रोशन स्टेज आ जाती है. ये भी प्रूव्ड है. साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी वो भी काम कर रही है, उस पर भी काम हो रहा है. और ये भी बहुत सारी स्टडी इसको भी सपोर्ट कर रही है. HPA एक्सिस और जो हमने कोर्टिसोल वाली बात करी है, तो ये एक्चुअली दीज आर नॉट डिफरेंट. सब बात एक ही कर रही हैं. सब बात यही बता रही हैं कि जो स्ट्रेस है वो इम्यून सिस्टम. हाँ बिल्कुल, दीज आर इंटररिलेटेड कंसेप्ट्स. ठीक है मैम. एक और क्वेश्चन है. दिस क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय डॉक्टर दिशा. जी. Stress is inseparable part of our life. How our immunity yes. combat with that? हमारी immunity. How our immunity combat with that? And does it adapt that daily stress and has any bad impact on us? यस एक्चुअली देखो स्ट्रेस जो होता है, जब हम स्ट्रेसर की बात करते हैं तो ये 2 तरह के होते हैं. एक होता है साइकोलॉजिकल और एक होता है फिजियोकेमिकल. साइकोलॉजिकल हमारी मेंटल स्टेट से रिलेटेड है. फिजियोकेमिकल में आ जाता है एनवायरनमेंट, आ जाता है फूड, न्यूट्रिशन, टॉक्सिन, कोई इन्फेक्शन, ये सब इसमें आ जाते हैं. तो देयर इज अ लिमिट. ठीक है, जैसे फिजियोकेमिकल स्ट्रेस होता है इसकी भी एक लिमिट होती है कि हमारा इम्यून सिस्टम इतना इसको टॉलरेट कर सकता है. इसके अगर वो ऊपर हो जाता है तो फिर इम्यून सिस्टम उस पर उसका इफेक्ट होना शुरू हो जाता है. तो यही है कि स्ट्रेस अगर है जी. हाँ जी मैम, आप बता रहे थे स्ट्रेस अगर है. हाँ, तो अगर स्ट्रेस है और वो अगर लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो इट विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इम्यूनिटी. ओके. देयर इज ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रेस ले. हाँ जी, बोलिए. कैन नेचुरल killer cells be transferred from one healthy person to another one suffering from disease, and will it help? देखिए ये जो अगर मैं बोलूँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो जब ब्लड में जो सेल आपकी इधर से हम एक से लेके रेसिपिएंट से लेके आप डोनर में डालते हैं तो वो सारी सेल्स आती हैं. पर ये ऐसे हेल्पफुल नहीं होता कि आप नेचुरल किलर सेल्स निकालोगे और वो उसको किसी में डालोगे. तो दीज आर एक्चुअली वेरी शॉर्ट लिव्ड सेल्स होती हैं ये. आप कितने समय तक इसको डालोगे. हमारा जो बोन मैरो है उसमें एक प्रोसेस चलती रहती है, हेमाटोपोइसिस.
ठीक है, जी जिसके लाइफ लॉन्ग जो है हमारी जो ब्लड सेल्स हैं वो उसमें बनती रहती हैं, क्योंकि हर जो ब्लड सेल है इनकी एक छोटी सी लाइफ होती है, तब तक ये रहती है, उसके बाद ये एपोप्टोसिस के थ्रू इनकी डेथ हो जाती है। तो ये जी कोई जी परमानेंट ट्रीटमेंट ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी की नेचुरल ब्लड सेल लेके दूसरे में डाल दें तो इट विल वर्क। ओके ये कोई ऐसा मुझे तो नहीं लगता, और मैंने अभी तक ऐसा कुछ पढ़ा भी नहीं है। ओके, थैंक यू मैम। आई हैव अ क्वेरी, हाउ immunity will become या weak in today's situation of COVID-19? एज वी ऑल नो, कोविड 19 में एक स्पेशल तरीके का स्ट्रेस है जो किसी ने कॉम्बैट नहीं किया आज तक, कोई नहीं लड़ा है यस इस तरीके यस के यस स्ट्रेस यस। से। तो हाँ, हाउ ये बहुत immunity will अच्छा become weak? क्वेश्चन है। जी हाँ, देखिए, इस समय क्या है, पिछले 2 महीने से, 2 ढाई महीने से जो हम लॉकडाउन फेस कर रहे हैं, इसमें क्या है, हम बार बार वही न्यूज देख रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे वही देख रहे हैं, और जी आप न्यूज टीवी में न्यूज लगा रहे हो तो आप वही, और आप ही सब यही रहा, ऑल द न्यूज चैनल्स और द न्यूज बिल्कुल पेपर, बिल्कुल। सोशल मीडिया आर जस्ट पैक्ड विद दिस कोविड-19। तो जी इम्यूनिटी, ये इट्स ऑल्सो माइट बी अ स्ट्रेस। अगर आप इसके बारे में ज्यादा सोच रहे हो, और सोच ही रहे हैं लोग, तो क्या होगा, बिल्कुल। ये स्ट्रेस हमारे अंदर एक जनरेट होने लगेगा, और ये जब तक ये सब रहेगा तो ये स्ट्रेस तब तक रहेगा। तो पहली चीज ये है कि हमें ये समझना है कि वी हैव टू लर्न टू लिव विद दिस कोविड-19। अभी ओके हमें इसके साथ रहना सीखना है, बिकॉज वी नो दैट देयर इज नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग और नो स्पेसिफिक वैक्सीन फॉर दिस नोवेल कोरोना वायरस। हमारे पास इज ओनली वेपन वी हैव टू फाइट विद दिस डिसीज इज अवर इम्यूनिटी। और इफ ओके वी लेट अवर इम्यूनिटी टू सप्रेस, हमारी अगर इम्यूनिटी किसी भी वजह से सप्रेस हो जाती है, तो क्या होगा, अगर फ्यूचर में हमें कोई इन्फेक्शन है, हम बात करें कोविड-19, ये नोवल कोरोना वायरस का भी इन्फेक्शन लगता है, तो ये जी हमारे लिए एक खतरा ही है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी इम्यूनिटी है जिसके थ्रू हम इससे लड़ सकते हैं। तो वी शुड, मैं आई विल सजेस्ट कि शुड बी इन्फॉर्म्ड, बट वी शुड नॉट बी ओवर इन्फॉर्म्ड। तो जस्ट ओवर टेक अ इन्फॉर्म। ब्रेक। हम जो ये ओके न्यूज देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे जो पढ़ रहे हैं, छोटा सा ऐसा हमें इससे एक ब्रेक लेना चाहिए, बस थोड़े समय के लिए हमें एक न्यूज जो भी हम देखते हैं देखने चाहिए, बिल्कुल ताकि जस्ट स्टॉप रीडिंग ऑल दीज न्यूज़ेस, और जस्ट टू सेपरेट फेक न्यूज फ्रॉम द रियल न्यूज। और हमें उन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखना है, उन सभी चीजों को ध्यान में रखना है जिससे हमारी इम्यूनिटी सप्रेस ना हो। देखिए क्या है, अगर हमारी इम्यूनिटी, वैसे हम बात करें तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि स्ट्रेसर दो तरह के, एक तो फिजिकल, जी। साइकोलॉजिकल सॉरी, और एक फिजियोकेमिकल। फिजियोलॉजी केमिकल। तो अगर इस साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर की वजह से, किसी भी वजह से हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है, तो अगर हमें कोई फिजियोकेमिकल स्ट्रेसर इफेक्ट करता है, तो क्या होता है, इस समय immune system which is already suppressed, it will not be able to deal with this physiochemical stress, which can be an infection, which can be an environmental factor, food and nutrition, कुछ भी। तो हमें ओके कोशिश ये करनी है कि इसके बारे में हमें ज्यादा सोचना नहीं है, हमें जितना पता होना चाहिए वो हमें पता है। हमें थोड़ा ओके सा एस्टिमेट लगाना है कि हम कितने रिस्क पर हैं, या हमारी फैमिली कितने रिस्क पे है, उसके हिसाब से हमें चलना है, और ओके सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने आप को बिल्कुल। बचाना है और अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखना है। Okay. There is another question, ma'am. It is asked by Hridesh Baghel ji. Is stress genetic? Is स्ट्रेस जेनेटिक stress हो सकता genetic? है। जी, उनका क्वेश्चन है ये। हाँ, स्ट्रेस, मुझे नहीं लगता कि स्ट्रेस भी जेनेटिक हो सकता है ना, क्योंकि ओके अगर आप किसी डिसीज की बात कर रहे हैं या किसी ऑटो इम्यून डिसीज की बात कर रहे हैं, तो सम ऑफ द ऑटो इम्यून डिसीजेज आर एक्चुअली जेनेटिक। पर जेनेटिक। ओके जो हमारी जो साइकोलॉजिकल स्टेट जो है, वो मुझे नहीं लगता कि जेनेटिक होती है। ये तो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट पे और डिपेंड करता है, हम क्या देख रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, किस सिचुएशन में हम रह रहे हैं, तो उस वजह से हमारी जो साइकोलॉजी है वो चेंज होती है। ओके। There is another question, ma'am, by Dr. Harishankar ji. Is stress condition of a person could reduce working efficiency of designed vaccine? I'll repeat. Is stress condition क्या? of a is stress condition of a यस यस person? यस, इट हैज एक्चुअली जी एक्चुअली हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इट हैज बीन प्रूव्ड कि जो ओके क्रोनिक स्ट्रेस होता है वो वैक्सीन के जी अगेंस्ट जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स राइज होता है वो उससे हम्म, सप्रेस हो जाता है। इट हैज बीन शोन कि ओके जो ओके एक्सचेंज वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी का प्रोडक्शन स्लो हो जी जाता है, और मैनी ऑफ द एक्यूट सॉरी क्रोनिक स्ट्रेसेस कैन ऑल्सो लीड टू द लेस एंटीबॉडी रिस्पॉन्स टुवर्ड द वैक्सीन। ओके ओके ओके। मैम एक जनरल क्वेरी है, स्ट्रेस कैन जी, आल्सो बी बेनिफिशियल
It's a question. Stress can also be Yes, beneficial. yes, Okay. देयर इज डिफरेंस, ओके, क्योंकि दो तरह के स्ट्रेस की हमने बात करी, एक्यूट और क्रोनिक। जी. अगर बहुत शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है, जैसे हमने बात करी कि अगर दो जानवरों के बीच में आपस में लड़ाई हो रही है, ओके, या आपने कोई खतरा देख लिया कि आपके सामने आपको दिखा कि कोई शेर खड़ा है, ठीक है, जी. तो इट विल लीड फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। हमारी बॉडी तैयार हो जाएगी उससे लड़ने के लिए या वहां से भागने के लिए। तो ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेस जो है ये तो बेनिफिशियल होता है, पर अगर ये परसिस्ट करता है, लंबे समय तक रहता है, तब ये हमारी बॉडी जी. के लिए हार्मफुल हो जाता है। देखिए, स्ट्रेस की एक और जो चीज होती है, जो स्ट्रेसर्स होते हैं, दीज कैन बी रियल, ठीक है, Okay. दीज कैन बी इमेजिन्ड ऑल्सो, ओके। तो Okay. ये हमेशा ऐसा नहीं होता कि स्ट्रेसर्स है ही, हम सोच भी लेते हैं कई बार, जैसे कई लोगों को अंधेरे में डर लगता है। जी. एक एग्जांपल और है जहाँ स्ट्रेस हार्मफुल हो जाता है, जैसे कि फोबिया, किसी को हाइट से Okay. फोबिया है, तो क्या होगा, जी. वो जब बहुत ऊंचाई पर चला जाएगा और वो नीचे देखेगा, तो वो स्ट्रेस हो जाएगा, उस समय Stress हो एक्यूट जाएगा. स्ट्रेस रिस्पॉन्स के अंदर डेवलप होना शुरू हो जी. जाएगा। तो उसकी बॉडी उस स्ट्रेस के अंदर, अब ये क्या है, ये फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल जो कंडीशन है, उससे एक जी. फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स शुरू हो जाएगा। तो उसकी बॉडी में देयर आर सम साइंस ऑफ दिस एक्यूट स्ट्रेस, जैसे कि बॉडी हमारी कांपने लगती है, स्किन येलो हो जाती है, पीपल्स डायलेट हो जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है। तो थोड़े जी. समय के लिए ठीक है, जब स्ट्रेसर चला जाता है तो देन आवर बॉडी टेक 20 to 60 मिनट टू रिटर्न बैक टू द नॉर्मल लेवल। पर अगर यही चीज परसिस्ट करती है और सामने वाला डरता रहता है, तो इट विल लीड टू द पैनिक अटैक, तो Panic वहां attack. ये हार्मफुल हो जाता है। Harmful. Okay. So, ma'am, I think there is a last query for today's session. What you suggest to improve immunity and decrease stress? हाँ, देखिए, हाँ, हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस को मैनेज करना, देखिए, इम्यूनिटी इंप्रूव करने के लिए हम सब जानते हैं कि हमें एक हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, जो जी. प्रोटीन, फाइबर और ये सब चीज, इम्यूनिटी के लिए एक प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं एंटीबॉडी, साइटोकाइंस, ऑल आर दीज जी. ऑल जी. आर प्रोटीन, ठीक है। Okay. तो हेल्दी डाइट हम लेते रहेंगे, इम्यूनिटी हमारी ठीक रहेगी। अब हम बात करते हैं स्ट्रेस कैसे मैनेज किया जाए। तो स्ट्रेस के जी. मैनेजमेंट के कई तरीके होते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, सोशल एक्टिविटीज हैं, या फिर अपनी जी. हॉबीज पर हम काम कर सकते हैं, हम्म. लिसनिंग टू म्यूजिक, ऑल दीज थिंग्स जस्ट आर यूजफुल टू मैनेज स्ट्रेस। इससे क्या होगा, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक हार्मोन रिलीज होता है जो कोर्टिसोल के इफेक्ट को सप्रेस करता है। Suppress जब करता हम है. मेडिटेशन करते हैं या फिर हम म्यूजिक सुनते हैं, तो जी. हमारे माइंड का वो पार्ट काम होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ द कोर्टिसोल। तो Okay. ये जो चीजें हैं, स्ट्रेस के जी. मैनेजमेंट में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर हमें वी आर एबल, इफ वी आर इन द कंडीशन ऑफ स्ट्रेस और वी आर जस्ट ट्राइंग टू मैनेज इट, तो हो सकता हम्म. है हम अच्छे से अगर ये सब करेंगे तो स्ट्रेस का जो नेगेटिव इफेक्ट हमारी इम्यूनिटी पर होगा वो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा. Okay. Thanks a lot, ma'am. We have ended with our आई एम online and नॉट, offline queries. Okay. Thanks a ओके lot for ओके, the session, and I hope ये टाइम, session वी बहुत आर ऑन टाइम informative ना? रहा होगा. Yeah, we are on time, absolutely. Thanks a lot, and we'll meet soon. Stay ओके home, ओके, stay safe. ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। Thank you.